Hi everyone, today we talk about small intestine. In our previous lecture, we studied the tubular part of digestive system, that is esophagus. Then we talk about the stomach. Today we talk about the small intestine. Small intestine consists of three parts. First part of small intestine is duodenum, in which stomach opens with the help of pyloric sphincter. Second part is jejunum, which is the highly coiled part, and third part is ileum. Duodenum is C-shaped part, and jejunum and ileum are highly coiled part. In jejunum and ileum, mainly absorption of digested food material takes place, and in duodenum, it is the main part where digestion takes place. Bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas enter into the duodenum through a common duct in which digestive enzymes are present which help in the digestion of food material. So duodenum is the main digestive part of small intestine, and in jejunum and ileum mainly absorption of digested food takes place. Jejunum and ileum are highly coiled part. Here I am going to draw the structure. What we studied earlier, this is food pipe esophagus, which opens into a J-shaped organ which we called it as stomach. It is a bag-like structure. It opens into the C-shaped part which we called it as duodenum. First part of the small intestine, that is duodenum. Next part, first I will draw लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. दिस इज ऑल लार्ज इंटेस्टाइन. This is the C-shaped duodenum which opens into the jejunum, which is highly coiled, and ileum, which is again highly coiled part. It's open into large intestine, and where it opens into large intestine, this is the sac-like structure which we called it as cecum, where this small intestine open into large intestine. This sac-like structure is known as cecum, and from cecum rising a small structure which we called as vermiform appendix, that is called appendix. Both the cecum and appendix are the vestigial organ in case of human being. Cecum and appendix are the vestigial organ, that is functionless in case of human being. So this part is highly coiled. We called it as jejunum,
And next part is, which is again highly coiled, we called it as ileum. So duodenum, jejunum and ileum, these three parts constitutes the small intestine. In jejunum and ileum, mainly absorption of digested food material takes place, and duodenum is C-shaped part in which juices of liver, that is bile juice, and pancreatic juice from the pancreas release into duodenum and help in the digestion of food materials. So in duodenum क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, और इलियम और जैजुनम हाईली कॉइल्ड पोर्शन है जिसमें मेनली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. अगर यहाँ पर एक ट्रांसफर सेक्शन को कट करें, इलियम से हम एक डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करेगा. तो इलियम का डायग्राम अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो इसमें 4 टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती हैं. पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो है 4 टिश्यू से मिलकर बनी है. ये हमने पहले भी पढ़ा है. कौन कौन सी 4 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द सीरोसा. दिस इज द सीरोसा. After serosa, the next layer is muscularis. In muscularis, longitudinal muscles and circular muscles both are there. So these constitute the muscularis layer. Third layer is submucosa, which is made up of connective tissue, blood vessels and nerve vessels are present in them. And the fourth layer is, innermost layer is mucosa. In case of small intestine, in mucosa layer, here are present finger-like projections. And we call this finger-like projection villi. Villi प्लूरल वर्ड है. अगर हम एक ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात करें तो हम उसको विलस बोलते हैं. सिंगल के लिए वर्ड यूज होता है विलस, और बहुत सारों के लिए ये वर्ड यूज करेंगे हम विलाई. तो 4 टिश्यू लेयर है जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को बनाती है. यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं. आउटर मोस्ट सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा, एंड द फोर्थ लेयर इज द म्यूकोसा. म्यूकोसा में कुछ मॉडिफिकेशन है. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, म्यूकोसा में क्या मॉडिफिकेशन है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं. विलाई प्लूरल वर्ड है और एक के लिए विलस वर्ड यूज किया जाता है. अगर सिर्फ एक विलस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो क्या स्ट्रक्चर हमें विजिबल होगा. यहाँ पर मैं सिर्फ एक विलस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रही हूँ. विलस का क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा. आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. This is the villus. That is a single finger-like projection. Villus में भी क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सेल्स की आउटर सरफेस पर भी ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. These are the folds. और इन सेल्स के जो ये फोल्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज माइक्रोविलाई. क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई. सो क्या मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. देयर आर प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which we called it as villus, and also folds are present into the cells of the villus जिनको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. तो इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा में विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. इन विलाई और माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन होता है. विलर एंड माइक्रोविलाई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्या, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. increase the surface area of small intestine.
for absorption of food material. For absorption of food मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए विलस और माइक्रोविलाई म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ताकि सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा म्यूकोसा लेयर या वॉल लेयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हमें इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को शो करना है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी फिर से वॉल लेयर्स का। वॉल लेयर्स में दिस इज द सीरोसा लेयर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सीरोसा के बाद प्रेजेंट है मस्कुलरिस, ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, ये मस्कुलरिस, एंड दिस लेयर इज नोन एज द सीरोसा। यहाँ पर एक विलस का डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे क्लियरली, दैट इज finger like projection, that is known as the villus. This is the submucosa layer. अभी हमने पढ़ा कि जैजनम और इलियम में फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरीज में। जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पर विलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, देर आर प्रेजेंट दी ब्लड कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। जो विलस के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें फूड मटेरियल सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। दीज आर द ब्लड वेसल्स in which digested food material absorbs. विलस में सेल्स प्रेजेंट है और इस सेल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करा है हमने। ये माइक्रोविलाई और विलस क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो फूड पहले इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब होगा और यहां से ये ब्लड वेसल्स के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर ये सारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंटर करेगा। बट जो फैट के डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं, फैट के डाइजेशन से जो फैटी एसिड्स बन रहे हैं, वो इन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होते। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, लिम्फ कैपिलरीज को हम लैक्टियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लैक्टियल्स। इन लैक्टियल्स के अंदर क्या एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्टेड फूड ऑफ फैट, डाइजेस्टेड फैट इन लैक्टियल्स या लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है। लैक्टियल्स, these are the white in appearance, मिल्की अपीयरेंस होता है, इसलिए हम इसको लैक्टियल्स बोलते हैं। तो फैट का बना हुआ जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इन लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा और बाकी जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर बाकी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होगा और जो फैट के डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो सब
इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज इन डाइजेस्टेड फैट को लेकर आगे ब्लड में मिक्स कर देता है। एज ये जो लिम्फ कैपिलरीज है आगे जाकर बाद में इन ब्लड वेसल्स के साथ ही कंबाइन कर जाते हैं। सो जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बाद में ब्लड में ही चला जाता है और ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स को हम पढ़ने वाले हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। इसके लिए फिर से एक डायग्राम मुझे विलस का ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ विलस which is showing the glands present in them. This is the serosa layer, ये muscularis layer हो गई और यहाँ पर हम glands का डायग्राम बनाने वाले हैं। ग्लैंड्स किस तरह से यहाँ पर रहती है, दो तरह की ग्लैंड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्रिप्स ऑफ लीबरखुन एंड क्रिप्स और लीबरखुन के साथ एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, दैट इज नोन एज द ब्रूनर्स ग्लैंड। यहाँ पर एक ग्लैंड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द सिंपल ब्रांच्ड tubular gland which is known as the crypts of Lieberkühn. This is crypts of Lieberkühn। इसी के पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्स ऑफ लीबरखुन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिप्स ऑफ लीबरखुन। फर्स्ट वन इज द गॉबलेट सेल्स which secrete mucus. Second cell is Paneth cell, and one more cell that is known as the basal cell. Goblet cell secrete mucus and basal and Paneth cells are also there. Paneth cells secrete enzymes. Brunner's gland secrete mucus and bicarbonate ions. जो स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है उसका एसिडिक मीडियम होता है क्योंकि वहाँ पर HCl बनता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड से जो बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होते हैं उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम है एल्कलाइन बना देते हैं फॉर द इजी डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा वो एल्कलाइन पीएच पर होता है, जबकि स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो एसिडिक पीएच पर होता है। सिक्रीशन ऑफ क्रिप्स ऑफ लीबरखुन and Brunner's gland are known as the intestinal juice. What is intestinal juice? That is secretion of crypts of Lieberkühn and Brunner's gland is known as intestinal juice. One more word we use for the intestinal juice, we called it as succus entericus. Succus entericus. What is succus entericus? Other name of intestinal juice, we called it as succus entericus. What is present in succus entericus? Secretion of both the glands, Crypts of Lieberkühn and Brunner's gland. Crypts of Lieberkühn और Brunner's gland के secretion को हम intestinal juice या succus entericus कहते हैं। इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडिनम में डाइजेशन होगा और जेजुनम और इलियम पार्ट जो कि हाईली कॉइल्ड पार्ट है इसमें मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। डिओडिनम में
फोल्ड्स की फॉर्मेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ डाइजेशन होता है। मेन जो विलस और माइक्रोविलाई हैं वो जैजनम और इलियम पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ताकि फूड का डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो सके। विलस और माइक्रोविलाई किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ताकि फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो सके। This is all about small intestine. I think the concept is very much clear to you all. In our next video, we will talk about the large intestine. Thank you so much.